So good afternoon, class 12. Yesterday we started this chapter electrochemistry, in which we read about that the first portion that we are going to frame here, that is the anode, followed by cathode on the other side, and both of them are connected to each other with the help of a salt bridge. Salt bridge is used for the purpose of completing the inner circuit of an electrochemical cell. When we dip a zinc rod in zinc sulfate solution and a copper rod in the copper sulfate solution, and both of them are connected with the help of a salt bridge and the wires, we are building up an electrochemical cell. Zinc dipped in zinc sulfate is acting as anode. Copper dipped in copper sulfate is acting as cathode. Both of them together makes the complete electrochemical cell, but when they are separated or when we individually treat them, we call them as half cells. Got it there? So this is half cell where oxidation occurs at the zinc side I'm talking about, and on the other side of copper, dipped in copper sulfate, that acts as the reduction half cell, and reduction occurs over here. When an electrochemical cell is set up, then it works on redox spontaneous reactivity. How? Because one portion, one half cell undergoes oxidation and the other half cell undergoes reduction. So yesterday we completed up equations on half cells, and then we added together, we build up an equation for the complete cell. I hope you people remember all that. So I'm moving on to the next part, how to represent an electrochemical cell. To put down the heading now, representation of an इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. चलिए बात करते हैं इसके बारे में. देख बच्चे, ये शुरू में क्या दिख रहा है आपको? एनोड. तो सबसे पहले एनोड को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, एनोड को रिप्रेजेंट करने के बाद बीच में आ गया ये सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज को इन दो लाइनों से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. आप पैरेलल लाइंस कह सकते हैं. इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. सॉल्ट ब्रिज के सहारे, सॉल्ट ब्रिज को इस इन लाइंस के सहारे रिप्रेजेंट करते हैं. ऑन द अदर हैंड वी हैव कैथोड, and this is the representation of an electrochemical cell. Now suppose let us consider at anode we are taking up the same one zinc, and on the other side copper is acting as cathode. So let's mark them here, how to represent when we talk about anode cathode representing together an electrochemical cell when they are separated with the help of a salt bridge. Now let us get started with anode. Now listen to me, बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनो बच्चे. आ जाओ बेटा. हमने हाउ डू वी स्टार्ट? वी स्टार्टेड विद जिंक रॉड. जिंक इज अ सॉलिड रॉड. हम यहाँ से चलते हैं, इट्स डिपिंग इनटू जिंक सल्फेट. तो देखो कहाँ से लिखोगे, जिंक सॉलिड ऐसे कर लो, या यहाँ पे कई बार सेमीकोलन भी लगा लेते हैं इधर ऐसे करके. ओके, और यहाँ पे क्या आ गया? जिंक आयन, और यू कैन जस्ट राइट ZnSO4 क्योंकि डिप्ड इन ZnSO4 एक्वस लिख दिया. फिर ये आ गया सॉल्ट ब्रिज, बिकॉज व्हेन यू मूविंग आउट ऑफ इट, ये आ गया यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज. आगे बढ़ो, सॉल्ट ब्रिज कहाँ पे गया? कॉपर सल्फेट के अंदर. तो यहाँ आया कॉपर सल्फेट और इधर आ गया एक्वस. फिर सेमीकोलन आप लगा सकते हो या स्लैश मार सकते हो, और इधर आ गया, बाहर निकलो, कॉपर रॉड. दैट इज सॉलिड. समझ में आ गई बात? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रिप्रेजेंटेड. सेमीकोलंस की जगह आप स्लैश भी यूज कर सकते हो, यानी ये चीज ऐसे भी दिख सकती है. कोई भी सॉल्ट ब्रिज बनेगा उसे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे. कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, हमेशा एनोड की रॉड से स्टार्ट करना, डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन, कमिंग आउट थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज डिपिंग इनटू कॉपर सल्फेट, एंड देन इट्स कमिंग आउट टू कॉपर रॉड. उसी रास्ते को हमने फॉलो करते हुए इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया. Isn't it there? समझ में आ गई ये बात? तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नाउ फर्दर सेइंग दैट बेटा, कई बार जिंक को तो हमने ऐसे ही लिख देते हैं, जिंक सल्फेट को Zn2+ करके लिखते हैं. दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि आयंस हमेशा एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. आयंस नेवर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. गॉट इट देयर? अब बताओ ये क्या बनेगा? सॉल्ट ब्रिज. अब बताओ इस तरफ क्या लिखूं? विच आयन?
Which ion should I write here? अगर इधर हमने जिंक आयन लिखा है तो इस तरफ कौन सा आयन लिखेंगे? Copper ion. That's true. So that is Cu2 plus with a slash, and this is solid copper rod. Got it बेटा? तो ये तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जल्दी से करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. और एक बात और, कई बार इन रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ यहाँ कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन्ड होती है कि कितनी क्वांटिटी में आपने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट लिया. तो यहाँ पे कई बार ऐसे भी आता है जैसे C1 और इधर लिख देंगे C2. माइट भी एक्वस ना लिखें तो C1 C2 करके लिख दें. तो बात इससे फर्क नहीं बैठ जाती बच्चे. सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि एक एक वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. C1 C2. C1 is the concentration of ZnSO4. C2 is the concentration of CuSO4. ये दोनों हाफ सेल्स हैं बच्चे, एंड दे बिल्ड अप रिडॉक्स कपल. क्लियर डियर? समझ में आ गई यहां तक सबको बातें? इज दिस पेज डन? तो यहां तक हमने सीखा हाउ टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. पहले एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड. ठीक है. अब बेटा बात करते हैं जरा सॉल्ट ब्रिज के बारे में, जिसके बारे में अभी इतना पढ़ चुके हैं हम लोग कि ये इन्वर्टेड यू शेप में आप देख रहे हैं. और ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हुए. और इस सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे. और ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें क्या क्या चीजें एडेड होती हैं. ऑब्वियसली कल मैंने बताया था KCl और KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट इन अ जेल ऑफ अगर अगर. दीज ऑल थिंग्स आर एडेड इन सॉल्ट ब्रिज ताकि ये जो आयंस हैं ये जेल फॉर्म में पैक्ड होके इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर बैठे रहते हैं जो कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं. हाउ, दैट इज वी गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके डियर? तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्ट ब्रिज. अब जरा सॉल्ट ब्रिज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं. लिखिए, द सॉल्यूशन इन two beakers are connected by an inverted U-tube known as salt bridge. It is filled with a solution of an electrolyte such as KNO3 or KCl or ammonium nitrate, which does not undergo a chemical change during the process. यानी जब सेल रन कर रहा है तो ऐसा नहीं कि ये कोई केमिकली नई चीज प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करते. जेलेटिन
और अगर अगर is added to the electrolyte to have a semi-solid mass. Did till here? The ends of the U tube are usually plugged. यूजुअली प्लग का मतलब ये होता है बेटा, इनके अंदर कॉटन के ना पार्ट को घुसा दिया जाता है। इधर ना कॉटन इस तरफ ऐसे घुसा दिया जाता है, इसे कहते हैं प्लग कर देना। इज दैट क्लियर डियर? नहीं तो जो भी सारा जेल पार्ट है वो फिर फ्लो होगा ना थोड़ा बहुत, तो इधर अंदर आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सा स्टॉपेज देने के लिए इसे प्लग कर दिया जाता है। किससे? कॉटन घुसाकर इसके अंदर। गॉट इट डियर? तो द एंड्स ऑफ द यू ट्यूब आर यूजुअली प्लग्ड with some porous material such as glass wool or cotton. Salt bridge allows the movement of ions from one solution to the other without mixing of two solutions. मतलब सॉल्ट ब्रिज क्या अलाउ करता है बच्चे? वो कभी भी एनोड और कैथोड में बैठे हुए इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, उनको मिक्स नहीं होने देता। इज दैट क्लियर? नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, उनके बीच में कोई भी मिक्सिंग नहीं हो सकती। गॉट इट? क्या करता है ये? सिर्फ मूवमेंट ऑफ आयंस को अलाउ करता है एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, मगर उनके बीच में मिक्सिंग नहीं होने देता। ऐसा नहीं कि जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ जाके मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सॉल्ट ब्रिज ये सेपरेशन रखता है, सारी कंडक्टिविटी करता है, मगर इस जिंक सल्फेट को CuSO4 के साथ मिक्सअप होने नहीं देता। इज दैट क्लियर डियर? ठीक है। अंदर जेल आ गया ना, जेल बताओ कैसे मिक्सिंग होने देगा? ठीक है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक जेलेटिन के अंदर सारे आयंस पैक्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली मिक्सिंग होने को वो रोक देता है। इज दैट क्लियर डियर? अब इसी के बारे में यहाँ पे करते हैं, नोट करके पॉइंट लिखिए। इंस्टेड ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कई बार बेटा कुछ जगह पर सॉल्ट ब्रिज की जगह पोरस पार्टीशन को यूज किया जाता है। पोरस पार्टीशन समझो, जैसे मटका होता है ना, जैसे मिट्टी का जो मटका बनता है, वो भी एक पोरस मटेरियल है बच्चे। तो इसी मटेरियल का एक पोरस पार्टीशन क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है? पोरस पार्टीशन is used to separate the two solutions, is used to separate the two solutions. कभी कभी, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करते हुए भी, लेकिन आज की डेट में इतना फॉलो नहीं होती ये चीज, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक ही कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं और उसके अंदर दोनों एनोड कैथोड को डिप कर देते हैं, यानी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह इसे बनाने की भी कोशिश की जाती है।
तो उस वक्त कोई हम लोग सॉल्ट ब्रिज को फिर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज का मेन पर्पस क्या है, इनको कनेक्ट भी कर दे, इनको मिक्स भी ना होने दे, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट को। जब तुमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, लेकिन अगर सेम ले लिए हैं तो फिर पर्पस हट गया ना, क्योंकि सेम को तो थोड़ी सेपरेट करोगे। इज दैट क्लियर? तो इस केस में तब नहीं करते, तब हम सॉल्ट ब्रिज को यूज नहीं करते। गॉट इट डियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आर यू डन टिल हियर एवरीवन? अब लिखिएगा यहाँ पे बेटा फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखिए, इट कनेक्ट्स the solutions of the half cells and completes the cell circuit, यानी inner circuit. So the salt bridge prevents the physical contact between two electrolytic solutions. It maintains the electrical neutrality. It prevents liquid-liquid junction potential. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In the absence of salt bridge, transference of electrons ये ऐसे लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर from electron transference from oxidation half cell to reduction half cell takes place for a moment. उसके बाद सेल काम करना बंद कर देगा। यानी अगर सॉल्ट ब्रिज हटा दिया तो ये सेल यूजलेस है, फिर आपका कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इनर सर्किट सेटअप नहीं हो पाया सॉल्ट ब्रिज हटाने की वजह से। यहाँ लिख लेना, द सेल will stop functioning. ओके, नाउ लिसन टू मी एवरीवन, कि सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट हो गया। ओके, इट्स इन कंटिन्यूएशन विद द फिफ्थ पॉइंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। व्हाट वुड हैपन इफ वी रिमूव सॉल्ट ब्रिज फ्रॉम एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इंटरनल सर्किट आपका बिल्डअप नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ सेकंड्स के लिए होगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही बंद हो गया, करंट ही नहीं चल रहा, फिर क्या होगा बच्चे? सेल बंद हो गया, सेल फंक्शन नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपका इंटरनल सर्किट टूट गया है। ओके, अब जरा बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, और आई लेट मी स्टार्ट विद फ्रेश।
अब कुछ बातें आपको ज्यादा समझानी है, जरा सुनो। ये है जिंक, जिंक सल्फेट के अंदर। ये है कॉपर रॉड, कॉपर सल्फेट के अंदर। यहां आ गया ये हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये है हमारा आउटर सर्किट जो कनेक्ट है वायर्स के थ्रू। अब बात करते हैं होता क्या है। जैसे कि मैंने आपके कहा कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें ये एनोड है जो कि एक हाफ सेल है, और इधर कैथोड है, ये दूसरा हाफ सेल है। यहाँ ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव टर्मिनल, ओ फॉर ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और क्या बनाएगा, Zn2+। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से छोड़ देना। वो 2 इलेक्ट्रॉन आगे की ओर ट्रैवल करते हुए किधर चले जाते हैं, कॉपर के अंदर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। अब ये जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे बैठे हुए Cu2+। इलेक्ट्रॉनों ने देखा कि यहाँ तो 2+ चार्ज है, तो हम यहीं आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, इससे +2 यानी प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस, -2 इधर हो गया, ये +2 हो गया। अल्टीमेटली चार्ज कितना हो गया कॉपर पर। तो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है इस कॉपर रॉड के ऊपर। समझ में आ गई बात। ये जो कॉपर यहाँ बचता है ये किधर जाता है, ये सॉलिड रॉड के ऊपर आ जाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। अब जरा सुनो, ये बात तो हमने मानी कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गए भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे, यहाँ पे आ गए कॉपर तक। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होता जा रहा है। जैसे समय आगे की ओर बढ़ता जा रहा है बेटा, तो यहाँ पे जिंक तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़कर इलेक्ट्रॉनों को तो कॉपर के पास भेज रहा है, मगर खुद उसके पास जिंक आयन बच गए या नहीं बच गए, बताइए। ये वाले एक्सिस में बच रहे हैं या नहीं बच रहे। ये थोड़ी ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो सारे के सारे एनोड की तरफ बैठे हुए हैं। अच्छा, एनोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव या पॉजिटिव। पहले 3 लेटर्स में देखो, नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एक नेगेटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है बेटा, एक पॉजिटिव आयन बढ़ पॉजिटिव आयन बढ़ते चले जा रहे हैं। इजंट इट देयर, समझ में आई बात। और उधर क्या हो रहा है, यहाँ पे जरा समझिएगा। कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को किस में डिपॉजिट कर रहा है, कॉपर के अंदर। तो यहाँ पर इधर अगर हम देखें इस चीज को, CuSO4 को, CuSO4 किस में टूटा बताइए, Cu2+ और सल्फेट आयंस के अंदर। Cu2+ को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया, कॉपर बना के उसे रॉड के ऊपर डिपॉजिट करते जा रहे हैं। मगर जो सल्फेट आयंस बाहर निकल रहे हैं वो तो एज इट इज यहाँ पे बैठे हुए मिल रहे हैं। वो उनको तो न्यूट्रलाइज करने का, उनको तो खत्म करने का, या उनको कोई और कैटायन मिलने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं, एक तरह से बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है ऑफ सल्फेट आयंस। तो इधर जिंक आयन बढ़ते जा रहे हैं और इधर कौन से आयंस बढ़ते जा रहे हैं, सल्फेट आयंस। और आप जानते हैं ये कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इजंट इट देयर, समझ में आई ये वाली बात। अब आता है काम सॉल्ट ब्रिज का, कि ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन ऑफ जिंक आयंस हैं और ये जो सल्फेट आयंस बढ़ते जा रहे हैं, इनके चार्ज को कम करवा दो ताकि न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक्सिस ऑफ पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल पर, और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पर एक्सिस ऑफ क्या बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव आयंस तो इधर बढ़ रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल पर, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन। 2 नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है, और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में इनकी पॉपुलेशन एक्सेस में होती जा रही है। अब बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स KCl फॉर एग्जाम्पल। अगर हम KCl की बात करें तो कौन कौन से आयंस हैं, K+ और Cl-। इज दैट क्लियर। अब क्या होता है बेटा, जो Cl- है वो इस तरफ ट्रेवल करता है, ताकि ये जो 2+ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये नेगेटिव Cl- इधर आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो सके, और यहां पर ये जो बढ़ते हुए Zn2+ है इनके चार्ज को कम कर सके। इज दैट क्लियर डियर। तो उतने ही Cl- इस तरफ आते हैं जितने जिंक आयंस क्रिएट होते चले जाते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आई ये वाली बात। और वहां पे कौन से आयन ज्यादा हो रहे हैं, SO4 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव के चार्ज को कम करने के लिए इधर कौन ट्रेवल करता है, K+ आयन। KCl होता है ना इसके अंदर, K+ कैथोड की तरफ जाता है ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज इस बढ़ते हुए नेगेटिव चार्ज को कम कर सके, और यहाँ पे Cl- क्यों ट्रेवल करते हैं, ताकि नेगेटिव चार्ज Cl का जिंक के 2+ को कम कर सके। और अल्टीमेटली इस तरह से सॉल्ट ब्रिज
कहूं तो मैं एक पीस लेकर आता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है पूरे सेल के अंदर, किसी भी चीज को एक्सिस में भरने नहीं देता। इज दैट क्लियर डियर? समझ में आ गई बात? बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन का तो आना जाना लगा रहा, इलेक्ट्रॉन एनोड से निकला किधर पहुंचा बेटा? कैथोड की तरफ। नाउ लिसन एवरीवन, एनोड कौन सा टर्मिनल है बेटा? नेगेटिव टर्मिनल। इस चीज को मैं ऐसे सिखाती हूँ, प्लीज मेरी बात समझना। जो जैसा, जैसे बायोलॉजिकली वी ऑल नो, जो जैसी स्पीसी होती है उनके आगे जो जो उनकी आगे चल के, मतलब आई मीन टू से जो उनके लेगेसी होती है वो उसी रूप में आगे बढ़ती है। आई मीन टू से, जैसे कोई बिल्ली है तो बिल्ली कोई तो पैदा करेगी, कोई डॉग है तो डॉग कोई तो पैदा करेगा, इंसान है वो इंसान कोई तो पैदा करेगा, बंदर बंदर कोई तो पैदा करेगा, इजंट इट? एनोड कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव चीज ही तो पैदा करेगा, दैट इज, एंड नेगेटिव चीज कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन। तो ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल ने नेगेटिव चीज निकाली, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन तभी छोड़े क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होते हुए किधर गए? कैथोड की तरफ। इज दैट क्लियर डियर? इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, मगर जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक्स्ट्रा आयंस क्रिएट हो रहे हैं, जिनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज बैठकर आ रहा है, जैसे कि इधर जिंक आयन, जैसे कि इधर सल्फेट आयन, इनको कम करने का काम कौन करता है? इनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करता है? दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज इस तरह से इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है डियर? ओके। अच्छा, तो ये होता है फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का मेन। एक लास्ट लाइन में होता है कि सॉल्ट ब्रिज जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, यानी इस इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल है, इसका एक अपना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल डिस्टर्ब नहीं होते, वो जो है जैसे हैं वो वैसे ही बैठे मिलते हैं। इज इट क्लियर डियर? समझ में आ गए ये सारे पॉइंट्स आपको, इंटरनल सर्किट और ये सब? तो रिमेंबर माय डियर, सॉल्ट ब्रिज के बारे में ये पॉइंट जरूर लिख लीजिए, नोट करके। In a salt bridge, if KCl is present, K positive and Cl negative ions, K positive ions will move towards cathode, और ये Cl negative will move towards anode. समझ में आ गई बेटा ये सारी बातें? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस पॉइंट के अंदर? क्लियर है अब आपको? नाउ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का तक तो हम लोग ने बात कर ली, अब जरा आगे की बात करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कैसे डिसाइड होता है कि 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स में से कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा? तो इसके लिए कल मैंने आपसे ये बात कही थी, every metal electrode has 2 types of potentials, one is reduction potential, one is oxidation potential। और हमें जो एक्सेप्ट करना है, जो हमें केमिस्ट्री में यूज करने हैं, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल्स करने हैं। ठीक है? तो हमने ये सीखा था कि जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा 2 मेटल इलेक्ट्रोड में से, जैसे जिंक और कॉपर में से, दोनों के आपने रिडक्शन पोटेंशियल नोट कर लिए। तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम पाया जाएगा वो एनोड होगा, जिसका ज्यादा पाया जाएगा वो कैथोड होगा। दिस वॉज द रूल, और हमने कल भी पढ़ा था। गॉट इट? मैंने आपको 2 वैल्यूज भी दी थी, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट, कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। तो माइनस वाला छोटा हुआ ना, छोटा वाला क्या होगा? एनोड, और बड़ा वाला क्या होगा? कैथोड। रिमेंबर माय डियर, व्हाट एम आई सेइंग? हालांकि हर मेटल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, लेकिन हमें मेटल के सिर्फ कौन क्या लेने हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को अकाउंट में लेना है, टू कंपेयर देम इन ऑर्डर टू डिसाइड
which one will act as anode and which one will act as cathode. Is it clear to everyone? Got it dear? तो अब जरा यहीं पे बात करते हैं. सबसे पहले आप डालिए ECS. ECS stands for electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ मेटल्स को लिस्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स. which reduction potential, which potential do we have to accept, oxidation or reduction? रिडक्शन. न्यूमेरिकल्स में हर जगह ये एक्सेप्टेड है, हम रिडक्शन पोटेंशियल ही एक्सेप्ट करेंगे. गॉट इट देयर? तो जरा उसके बारे में बात करते हैं. तो वो लिस्ट हमें याद करनी है बेटा. लिथियम का बेरियम से, बोलो जरा मेरे साथ बेटा, प्लीज बोलो. लिथियम का बेरियम से, फिर से बोलो. लिथियम का बेरियम से काना मग अल जिंक फीनी. बोलिए जरा पूरी ये लाइन. अटपटी है कोई बात नहीं, हमारा पर्पस है लर्न करना. जरा बोलो. लिथियम का बेरियम से, फिर से बोलो. बेरियम से काना मग अल जिंक फीनी. बोलो. काना. भगवान कृष्ण जी को काना काना करते हैं ना, कैसे कह देते हैं ना, काना आए कहना आए, कि वो तो उनको तो बहुत प्यारा नाम है, लेकिन हम फिलहाल अपना पर्पस निकाल लेते हैं उसमें से. काना मग अल जिंक फीनी. से दैट अगेन बेटा, प्लीज स्पीक दैट. काना मग अल जिंक फीनी. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. फिर से बोलिए. संत पंडित बने हैं कॉपर. संत पंडित बने. देखो SN फॉर संत, पंडित फॉर P, बने फॉर बने. ठीक है. संत पंडित बने हैं कॉपर. करो. संत पंडित बने हैं कॉपर. पहले यहां तक बोलो, शुरू में बोलो. बोलिए. लिथियम का बेरियम से काना मग अल जिंक फीनी. संत पंडित बने. संत पंडित बने हैं कॉपर. ठीक है. अब कॉपर के ऊपर H है ना, कॉपर के ऊपर H है ना, तो कॉपर के नीचे के एलिमेंट्स में यहां लिख रही हूं, फिर से एक H आएगा, Hg बना लेना. Hg बना लोगे. Hg. Hg के नीचे अब देखो, G रिपीट करना और इसे कर देना Ag. Hg Ag. Ag किसका सिंबल होता है? सिल्वर का. तो सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड की बेटा ज्वेलरी बनती है. सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड की ज्वेलरी बनती है. इज दैट क्लियर? और नीचे से लिखना फूलों की बहार आई. ऑल डन. ये आपको लिस्ट याद करनी. फूलों की बहार आई. गॉट इट डेट बच्चे? ठीक है. जरा चलिए करिए, जरा मेरे साथ बोलिए एक बार. लिथियम का बेरियम से का ना मग अल जिंक फीनी. संत पंडित बने हैं कॉपर. कॉपर के ऊपर H, कॉपर के नीचे भी H. Hg. फिर G वाला रिपीट करो, Ag. हाँ, सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड की ज्वेलरी. और नीचे से फूलों की बाहर आई. कम ऑन, राइट इट डाउन एट द बैक साइड ऑफ योर रजिस्टर. रिवाइज इट वंस एंड आई आस्क यू. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज वर्क अकॉर्डिंगली. सिर्फ कॉपी करने के लिए घर पे नहीं बैठना बेटा. अगर आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं तो लर्निंग प्रोसेस भी अपना स्ट्रिक्टली बढ़ाए. लर्निंग प्रोसेस का मतलब रटंत्री वर्क नहीं होता, मतलब होता है समझ के चीजों को अपने दिमाग में बैठाना. वोकैबुलरी अपनी केमिस्ट्री में, अपने हर सब्जेक्ट में इंक्रीज करना, शब्दों को जानना डियर. और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेजेबल बनने के लिए.
चलिए एक बार मेरे साथ कीजिएगा फिर से। बोलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिथियम का बेरियम से का ना मग अल जिंक फी नी संत पंडित बने हैं कॉपर एच जी, एच के ऊपर एच जी, फिर ए जी, पी टी, ए यू और नीचे से फूलों की बहार आई। यानी गोल्ड के बाद ये आयोडीन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लिथियम का बेरियम से का ना मग अल जिंक फी नी संत पंडित बने हैं कॉपर एच जी, ए जी, पी टी, ए यू और नीचे से फूलों की बहार आई। नाउ लिसन बेटा, डाउनवर्ड साइड में ऐसे चलते हुए हमारे यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इज इंक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर, जिसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल फॉर सम रीजन हमने 0 वोल्ट्स मान लिया। एक नंबर लाइन है जिसमें बीच में हाइड्रोजन 0 डिमार्केट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ऐसे चलते हुए इंक्रीज हो रहा है। तो ये बताओ, जीरो के नीचे इधर अगर इंक्रीज वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होने वाली है? पॉजिटिव। और 0 से ऊपर यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कम इंक्रीज हो रहा है, तो 0 से ऊपर तो बेटा कम हो रही होंगी वैल्यूज, यानी ये सारी नेगेटिव वैल्यूज है। समझ में आ गई बात? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट प्लेस है इनके रिडक्शन पोटेंशियल आपको माइनस सिंबल के साथ मिलेंगे। जैसे मैंने कल आपको याद कराया था, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट, ये याद कर लो। कॉपर का क्या होता है? +0.34 वोल्ट। तो अब तुम्हें इससे इंडिकेशन मिला होगा कि क्यों कॉपर का पॉजिटिव है और क्यों जिंक का नेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन का हमने आर्बिट्रली अपने आप पर मान लिया है कि इट इज 0 वोल्ट्स, उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट्स है। और अगर हाइड्रोजन को जब हम 0 वोल्ट्स पर स्टैंड करा देते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल, हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसे ऐसे एब्रीवेट करके लिखते हैं SHE, बट डोंट कॉल इट शी करके ऐसे नहीं बोलते हैं, इट्स नोन एज SHE। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है इसे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना मान लिया है? 0। तो हाइड्रोजन के ऊपर वालों का नेगेटिव, हाइड्रोजन से नीचे वालों का पॉजिटिव। ये बात करी अभी तक, समझ में आ गई यहां तक बात आप सबको? अच्छा, क्या ऐसा होता है बेटा कि कोई मेटल इलेक्ट्रोड सिर्फ एनोड की तरह ही हमेशा काम करेगा या सिर्फ कैथोड की तरह काम करेगा? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑल डिपेंड्स अपॉन आप किस कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हो। मैंने आपको बताया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा, जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग नाउ। लेट्स से वी आर पॉइंटिंग जिंक ओनली। जिंक व्हेन प्लेस्ड विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ हमने जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया। अब बताओ, कैल्शियम का तो और जिंक में अगर कंपेयर करें, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कैल्शियम का कम है, तो कैल्शियम एनोड होगा और जिंक कैथोड होगा। कैल्शियम एनोड और जिंक कैथोड हो जाएगा। और अगर उल्टा कर दूं जिंक और कॉपर का बेटा, तो जिंक का कम है, कॉपर का ज्यादा है, तो इसका मतलब जिंक हो जाएगा तब एनोड और कॉपर हो जाएगा तब कैथोड। यानी हर मेटल कैथोड भी बन सकता है, एनोड भी बन सकता है, बट डिपेंड करता है आपने किसके साथ उसकी कपलिंग करी है।
इज दैट क्लियर डियर? समझ में आ गई बात? तो नेवर एवर से दैट कि एक मेटल हमेशा एनोड की तरह काम करेगा, उसका इलेक्ट्रोड जब बनेगा, या वो सिर्फ कैथोड की तरह काम करेगा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन, द पार्टनर दैट यू हैव चूजन. इज दैट क्लियर डियर? समझ में आ गई बात? तो एनी मेटल इलेक्ट्रोड कुड एक्ट एज एनोड और इट कुड एक्ट एज कैथोड. इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन दैट यू आर यूजिंग. आई ये बात समझ में बेटा? तो इस लिस्ट की मदद से हम किन्हीं भी दो मेटल्स को पकड़कर ये बात बता सकते हैं कि ये एनोड होगा और ये उसमें कैथोड होगा. मान लो ये लिस्ट नहीं है, मान लो ये लिस्ट नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे भाई? उनके अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल तो जरूर प्रोवाइडेड होंगे. तो रिडक्शन पोटेंशियल में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो क्या बनेगा? एनोड. और जिसका ज्यादा होता है वो क्या बनेगा? कैथोड. ठीक है? तो सबसे पहले अब जरा यहां लिखिए, सिलेक्शन ऑफ, या एक मिनट ये मत लिखिए, हाउ टू डिटरमाइन एनोड कैथोड. नोट करके पॉइंट लिखिए. तो पहले तो नंबर वन, बाय लुकिंग at their reduction potentials. Metal with low reduction potential, metal electrode लिखना बेटा, metal electrode with low reduction potential, और एक तरफ है metal electrode with high reduction potential. ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा. सेकंड, अगर ऐसा नहीं है, लुक एट ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, metal placed above in the series is anode or below the series is cathode. ये अबव और बिलो की कहानी ये है. आप उन दो मेटल्स को, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सर्कल करके प्लॉट किया है ये वाले, फिर उनको देखो, जो ऊपर है वो एनोड, जो नीचे है वो कैथोड. इज दैट क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्योंकि क्यों बनाया मैंने इसे एनोड? क्योंकि नीचे आते आते वैल्यू बढ़ रही है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो ऊपर वाले की यानी कम है, जिसकी कम होगी वो एनोड है, जिसकी ज्यादा है वो कैथोड. समझे? प्रिंसिपल रूल तो हम यही फॉलो कर रहे हैं बेटा, ये वाली चीज ही. इज दैट क्लियर डियर? समझ में आ गई ये बात सबको? ठीक है? करें आगे. अब यहाँ पे ईसीएस के बारे में, हम फॉर मेटल्स के बारे में लिख रहे हैं. जो मेटल ईसीएस में जितना ऊपर बैठा हुआ है, जितना ऊपर है, उसका उतना कम रिडक्शन पोटेंशियल है. तो यहां लिखते जाइए इस पॉइंट को इसी तरह से बेटा, उसका यानी लेस रिडक्शन पोटेंशियल इज देयर. अगर उसका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो उतना ज्यादा बेटा रिएक्टिव मेटल माना जाएगा, उतना रिएक्टिव मेटल होता है, और वो उतनी जल्दी लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, विल इजीली गेट ऑक्सीडाइज, विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन. यानी जो लूज करता है जल्दी इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो उतना अच्छा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा. फॉर नॉन मेटल, अब आप कहोगे मैम ईसीएस में नॉन मेटल कहाँ थे? जो हमने फूलों की बाहर आई जो करा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं. इनके ऊपर जस्ट उल्टा होता है. यानी जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिस मेटल का होगा, आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो वो देखो सबसे नीचे है. तो नॉन मेटल में उल्टा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वो उतना रिएक्टिव होता है, वो उतनी इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा.
वो उतनी इजिली रिड्यूस्ड हो जाएगा, वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। डन बेटा टिलिया, तो लिखिए अब इसमें द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of hydrogen electrode is taken to be 0.00 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट आप कह सकते हैं। therefore the metal placed above in ECS above hydrogen in ECS will have negative reduction potentials, and those placed below hydrogen will have positive reduction potential. Lithium has the lowest electrode potential, indicating, बताओ, लिथियम का सबसे कम है बेटा, क्योंकि लिथियम सबसे ऊपर बैठा है तो उससे कम है, तो यानी जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, अभी हमने जाना वो क्या होगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम से लिथियम के बारे में कहा जाए, क्योंकि इसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है, इट इंडिकेट्स इट इज द मोस्ट पावरफुल reducing agent. Metal placed above hydrogen in ECS displaces hydrogen from dilute acids. Remember this point beta. मतलब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल्स हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल वाला एलिमेंट जैसे जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोजन को उधर से रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। और लास्ट पॉइंट, इन मेटल्स द मेटल विद lower reduction potential will displace the other metal that has higher reduction potential. जैसे बेटा मैं करूं जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन, तो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे होता है, जिंक का लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं, क्योंकि जिंक ईसीएस में ऊपर है, और कॉपर का क्या होता है बेटा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेटल, उस मेटल को उसी के घर से, कॉपर सल्फेट के घर से कॉपर को बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, तो लोअर वाला हायर को उसी के घर से बाहर निकाल देता है। तो दिस इज हाउ वी गेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
बट अगर आप सोचेंगे कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को बाहर निकाल देगा तो आप कहेंगे नो, क्योंकि कॉपर का क्या है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर वाला लोअर वाले को नहीं निकाल पाता, लोअर वाला हायर वाले को उसी के सॉल्ट से बाहर निकाल देता है। ये लोअर हायर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स, गॉट इट डियर? इज इट क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया? बाकी सब कल करते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो, गुड बाय फॉर नाउ।